Alright, so now let's quickly discuss some questions related to the same. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 is right on your screen and it says given below are two statements. Statement 1 is the lungs are situated in the thoracic chamber. Statement number 2 says the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum and laterally by the ribs. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Now tell me, what do you think? Are both the statements correct? Are both of them incorrect? Is one correct, two incorrect, or is it the second one is correct and the first one is incorrect? What do you think? The lungs are situated in the thoracic chamber is absolutely correct. ठीक है, जो दूसरी स्टेटमेंट है फिर कि जो thoracic chamber है formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum and laterally by the ribs. That's absolutely correct, right? That's exactly what most of you are going to say, but it is incorrect. ठीक है, because if you actually observe the lines of NCERT and if I were to quickly turn the pages, ठीक है, जो हमारा बेसिकली ये है हमारा thoracic chamber, it also has the diaphragm, right? It all देखो, as you can clearly see, let me show those lines exactly. The lungs are situated in the thoracic chamber, that's correct. So thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. So you know, देखो अगर हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं thoracic chamber को यू नो, अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं, अगर मैं बोलती हूँ thoracic chamber, ठीक है, तो thoracic chamber में वेंट्रल साइड पे मेरे पास होता है sternum, डोर्सल साइड पे मेरे पास होता है vertebral column, lateral साइड पे मेरे पास होता है ribs and on the lower side I have the diaphragm. But अगर यहाँ से मैंने डायफ्राम हटा दिया, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज ओनली द रिब केज, राइट? मैंने आपको अभी दिखाया भी था अ कपल ऑफ मिनट्स बैक, ठीक है। अगर खाली स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स हैं, दैट इज द रिब केज एंड नॉट द thoracic chamber. Thoracic chamber एक एयर टाइट चेम्बर है, वो एयर टाइट तभी बनेगा जब ऑन द लोअर साइड वी हैव द डायफ्राम, राइट? सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। चलो, now let's move on to the next question, which is question number 2, and here's what it says. Given below are two statements. ठीक है, पहली statement है the part starting with the external nostrils all the way up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. Statement number 2 says the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to the body temperature. Now what do you think? पहली स्टेटमेंट जो है कि जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ऑल द वे अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. वेल दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. जो कंडक्टिंग पार्ट है वो शुरू होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से और कहाँ तक चलता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर बात करूँ तो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है उसका काम क्या क्या है? इट हैज़ गॉट मल्टीपल फंक्शन. पहला है टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेoli, टू ब्रिंग द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेoli, to clear the atmospheric air from the foreign particles. Third is to humidify the air, and the fourth one is to bring the air to the body temperature. So both the statements are correct in this case. That makes option number C the correct answer. Both statement 1 and 2 are correct. I hope that is clear to everybody. Now let's move on to the next question. The next question again is a statement based question. Statement 1 says the first step in respiration is breathing, and statement number 2 says inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradients between the atmosphere and the lungs, ठीक है। तो आई थिंक अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन में बोलते हैं, टेकिंग इन एयर, यूर रिलीजिंग आउट, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. अब दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है वो कैसे क्रिएट आउट कैसे करे जाते हैं? बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन में इवन आई हैव क्रिएटेड सर्टन DPPs जहाँ पे पहले भी कई सारे क्वेश्चन बनाए, एंड इंस्टेड ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट आई जस्ट राइट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पीपल एंड अप मार्किंग इट एज द करेक्ट आंसर, which is why it's very very important to pay attention to the details. It's the details that make the difference. The difference between ordinary and extraordinary is just a little extra, right? ठीक है, तो you have to pay attention to these minute details कि inspiration और expiration इसलिए हो रहा है because we're creating a pressure gradient, not a concentration gradient, ठीक है। because chemistry में we are so used to the word concentration gradient that वो एक subconsciously कहीं ना कहीं register हो जाता है and the brain accepts it as the correct answer, right? But again यहाँ पे because pressure gradient है, this becomes the correct answer. So both the statements 1 and 2 are correct. So that makes which option the correct answer? Statement 1 becomes option 1 becomes the correct answer. I hope that is clear to everybody. Okay, again another statement based question is statement number 1 says lungs are covered by a double layered pleura. Lungs जो होती हैं हमारी they are covered by a double layered membrane. On the inner side on the inner side we have the visceral pleura and on the outer side we have the parietal pleura, right? Inner side पे हमारे पास visceral pleura, बाहर side पे हमारे पास parietal pleura. So lungs are definitely covered by a double layered pleural membrane. I hope that is clear to everybody. स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, एल्वियोलाई आर थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एल्वियोलाई जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं
and not just thin, they are irregularly walled. Of course, irregularly walled में बोल रही हूँ because the line में simple squamous epithelium, right? तो simple squamous epithelium होते हैं वो irregularly walled होते हैं, right? And they are vascularized bag-like structures. Even that is correct. So both the statements are correct in this case. That makes option number 1 the correct answer. All right, let's move on to the next question. Oh my God, how many more do we have? We have a couple of more, right? And we'll be good to go. It's very, very important, you know, because the video has been stretched for, you know, almost 1+ hours. So now it's very important to keep you engaged and to ensure that, you know, you're actually paying attention to the concepts, and which is why I've added these questions, right? अगर मैं statement number 1 की बात करूँ तो statement number 1 बच्चा बोलता है an increase in pulmonary volume, an increase in the pulmonary volume will increase the intrapulmonary pressure more than the atmospheric pressure. Statement number 2 says relaxation of the diaphragm and intercostal muscles reduces the thoracic volume. What do you think? पहली स्टेटमेंट जो है इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम. देखो पहली बात तो जो होता है प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से. बॉयल्स लॉ हमें बता चुका है ये बात. एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी लंग की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है. अगर लंग की वॉल्यूम इंक्रीज होगी विल दैट इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. ठीक है, विल दैट इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? दैट्स इनकरेक्ट. इफ द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज, इफ द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज, द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज. सो स्टेटमेंट नंबर 1 ऑटोमेटिकली बिकम्स इनकरेक्ट. ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करूँ, स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिड्यूसेस द thoracic वॉल्यूम. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. देखो जब डायफ्राम एक्चुअली में से एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल्स. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो डोम शेप से ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है. बट जब ये रिलैक्स करता है तो यू नो ये वापस फ्लैट से डोम शेप हो जाता है. सो व्हेन इट बिकम्स डोम शेप द वॉल्यूम इंक्रीजेज इन द एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन. ठीक है, और अगर मैं इंटरकोस्टल मसल्स की बात करूँ, इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है दे मूव आउटवर्ड एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द thoracic वॉल्यूम इन दी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस. बट यहीं पे अगर इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे दिल कम बैक. ठीक है, ठीक है. सो दे विल मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, दे विल मूव इनवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड. दैट विल रिड्यूस द thoracic वॉल्यूम इन दी डोर्सोवेंट्रल डायरेक्शन. तो स्टेटमेंट नंबर 2 ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, let's move on to the next question. The next question again is an interesting question. Statement number 1 बोलता है during normal exhalation diaphragm and external intercostal muscles relaxes. ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सेलेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलेशन के दौरान जब हम इनहेल कर रहे हैं हम एक्सेल कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं हम एक्सेल कर रहे हैं, राइट. नॉर्मल एक्सेलेशन के दौरान जो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो रिलैक्स होती है. वेल दैट्स करेक्ट, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने अभी बताया डायफ्राम जब अपने रिलैक्स स्टेट में होता है वो ऐसे डोम शेप होता है, बट जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है तब वो ऐसे डोम शेप से फ्लैट बन जाता है. नाउ अब क्या है, अब देखो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, तो डायफ्राम जब रिलैक्स करेगा, अभी तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में इसलिए डोम शेप से फ्लैट हो गया, बट जब वो रिलैक्स करेगा इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हिच इज़ द डोम शेप, राइट. तो जब वो अपने वापस डोम शेप पे आ जाएगा द वॉल्यूम, द thoracic वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है ऑफ द thoracic कैविटी दैट विल डिक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में वर्ड्स इंटरचेंज कर दिए. देखो एक्चुअली में स्टेटमेंट नंबर 2 है कि ओके वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट वन, राइट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वन सेकंड. All right, now let's discuss the first statement, and statement number 1 says during normal exhalation diaphragm and external intercostal muscles relax. ठीक है, तो अभी मैंने आपको जस्ट explained it to you a couple of minutes back कि जो डायफ्राम होता है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में से डोम शेप होता है. ठीक है, बट नॉर्मल स्टेट में वो डोम शेप होता है, बट फिर वो क्या हो जाता है, डोम शेप से क्या हो जाता है, डोम शेप से हो जाता है फ्लैट. नॉर्मल स्टेट में वो डोम शेप होता है, डोम शेप से वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. ठीक है, तो जब मैं डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करूँगी तो वो डोम शेप से क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, विच इंक्रीजेज द डायरेक्शन, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. ठीक है, बट यहाँ पे हम एक्सेलेशन की बात करें. एक्सेलेशन के दौरान बच्चा क्या होता है, एक्सेलेशन के दौरान जो एयर होती है इट मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड इन द एटमॉस्फेयर, राइट. लंग से एटमॉस्फेयर में जाएगी, मीन्स लंग्स में हाई प्रेशर होना चाहिए और जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिलेटिवली लो प्रेशर होना चाहिए. अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो फिक्स्ड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते. तो एटमॉस्फेयर के विद रिस्पेक्ट टू जो प्रेशर विद इन द लंग्स है वो हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा. वो ज़्यादा कैसे होगा, व्हेन वी, ठीक है, हम सबको पता है बॉयल्स लॉ विच इज़ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट. तो अगर मैं क्या करूँगी, अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दूँगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा. अब मुझे वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा मान लो लेट्स से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में विच मीन्स फ्लैट है तो मैं उसे दोबारा रिलैक्स कर दूँगी. तो जब मैं उसे रिलैक्स कर दूँगी तो इट विल बिकम डोम शेप्ड अगेन, फ्लैट से डोम शेप हो जाएगा. ठीक है, तो अब जो डायफ्राम है वो फ्लैट से डोम शेप हो जाएगा, विच मीन्स रिलैक्सेशन हो रहा है, राइट, एक्सेलेशन के दौरान. ठीक है, अब जैसे ही डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करेगा वो फ्लैट से डोम शेप हो जाएगा, राइट, विच मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द thoracic कैविटी विल इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन. ठीक है,
तो क्या होगा, अब जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स एंड स्लाइटली अपवर्ड्स। बट जब ये रिलैक्स करेंगी दे विल मूव इनवर्ड्स एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स, राइट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी दे विल मूव इनवर्ड्स, दे विल मूव, ठीक है, इनवर्ड्स। जब अंदर की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा, फिर से वॉल्यूम कम होगी और जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जो हमारी एयर है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगी, यानी फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड, एंड दिस इज़ नथिंग बट एक्सहेलेशन, राइट। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं। दी एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। अब व्हाई वाज आई एक्सप्लेनिंग सो मच, बिकॉज अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने नहीं किया, राइट। आई मीन इस क्लास में डिस्कस नहीं किया, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज। सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन, यू नो, वंस वी आर डन विद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दैट विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber, we just discussed that, ठीक है, but that will decrease the volume of the thoracic chamber dorsoventrally and anteroposteriorly respectively। अब यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो वो फ्लैट से डोम शेप हो जाएगा, और जब वो फ्लैट से डोम शेप होगा दैट विल डिक्रीज द thoracic वॉल्यूम इन दी एंटीरोपोस्टीरियर एक्सिस। तो पहले एंटीरोपोस्टीरियरली आना चाहिए, और जब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स करेंगी, दे विल डिक्रीज द thoracic वॉल्यूम इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, डोर्सोवेंट्रली, राइट। सो डोर्सोवेंट्रली बाद में आना चाहिए, सो विच इज़ वाई यू नो ये थोड़े इंटरचेंज कर दिए गए एंड हेंस दिस बिकम्स इनकरेक्ट, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड एज, स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, बी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सी पल्मोनरी रेस्पिरेशन और डी ट्रेकियल रेस्पिरेशन। व्हाट डू यू थिंक? तो रेस्पिरेशन होता है लंग्स स्किन के थ्रू, दैट इज रेफर टू एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ very interesting question. Next question is, which of the following is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air? Is it A, exchange part? Is it B, conducting part? Is it C, external nostrils? Is it D, terminal bronchioles? What do you think? इनमें से कौन सा एक्चुअली में साइट है? इट्स द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे एक्चुअली में डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड एटम। इज इट द एक्सचेंज पार्ट? इज इट द कंडक्टिंग पार्ट? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, टर्मिनल ब्रोंकियल? द करेक्ट आंसर वुड बी द एक्सचेंज पार्ट, राइट। एक्सचेंज पार्ट बनाता कौन है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हमारी लैंग्वेज में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई और एल्वियोलार डक्ट्स, ठीक है, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में एल्वियोलाई, ठीक है, अलोंग विद देयर डक्ट्स दे फॉर्म द एक्सचेंज पार्ट। और एल्वियोलाई के थ्रू ही तो हम सबको पता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है, जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ होती जाती है और जो CO2 है वो ब्लड से एल्वियोलाई में जाता है एंड देन एल्वियोलाई से बाहर चला जाता है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, एपिग्लॉटिस। ओके कम ऑन, एपिग्लॉटिस हेल्प्स टू A, produce sound, B, reduce friction on the lung surface, C, prevent the entry of food into the pharynx or larynx, or is it D, all of these? What do you think? एपिग्लॉटिस का बच्चा क्या काम है? एपिग्लॉटिस इज यू नो द कार्टिलेजिनस फ्लैप, द थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, विच इज़ कवरिंग द ग्लॉटिस, राइट। जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की उसको कहीं ना कहीं कवर करता है, ठीक है। तो आगे की तरफ एक्चुअली में देखो हमारे पास प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स हैज़ यू नो लैरिंग्स का एक कार्टिलेज होता है विच इज़ द एपिग्लॉटिस विच प्रीटी मच कवर्स द ग्लॉटिस, ठीक है, जो ऐसे ग्लॉटिस को एक्चुअली में कवर कर रहा होता है, ग्लॉटिस को कवर कर रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड। तो ये जो ग्लॉटिस क्या करता है? इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फेस, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर वुड बी इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स और इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। The next question again is an interesting one. Read the following statements and identify X. अब X क्या है? मैंने actually दो statements दिए जिसमें मैं X की characteristics describe कर रही हूँ. You'll have to identify what X is, okay? So if we look at the first statement says X humidifies the air to body temperature, and the second is X clears it from foreign particles. Read the following statements and then you have to identify X. X जो है वो ह्यूमिडिफाई करता है एयर को एंड ब्रिंग्स ह्यूमिडिफाइज द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। एक तो ह्यूमिडिफाई करता है एयर को एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और X ऑल्सो क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। अब ये किसके फंक्शन से रिजेंबल हो रहा है? कंडक्टिंग पार्ट के। सो इज इट ए कंडक्टिंग पार्ट? इज इट बी एल्वियोलाई? इज इट सी एल्वियोलार डक्ट? इज इट डी एक्सचेंज पार्ट? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर, आई हैव गिवन यू इनफ हिंट व्हिच मेक्स ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर, राइट। सो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है उसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फंक्शन बीइंग कंडक्टिंग द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द एल्वियोलाई, bringing the air to the body temperature, humidifying the air and clearing it from foreign particles. I hope that is clear to everybody. Now with that, okay, one last question. Complete the analogy. I hope this is the last one. Oh, do we have, oh my god, I'm so sorry guys.
guys. I know, I was quite excited about the session, and I think I ended up adding multiple questions, but it's good, right? It will only increase and enhance your practice, right? I'm not going to derive any benefit out of it, so but as long as it helps you, it's helping me, right? Okay, so next question is complete the analogy, okay? And you can see the variation in the question, right? It's not just one type of question that I've added. I've tried, to add multiple different types of questions so that it tricks your brain, right? So that you rack your brains actually. Complete the analogy. Outer pleural membrane is to thoracic lining as inner pleural membrane is to what? ठीक है. अब जैसे हम सबको पता है जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हमारी लंग में एक्चुअली में लंग हैज़ 2 membranes, राइट? इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग, और इफ वी आई थिंक वी हैड दैट स्ट्रक्चर, राइट? जस्ट गिव मी अ मोमेंट so that I can explain it to you better. Just give me a moment. Okay, there we go. Let me just add this diagram. Exactly where we're supposed to add it. Where is it? There we go. Alright, there we go. अब मैं एक्चुअली में अगर बात करूँ एंड इफ यू लुक एट दिस डायग्राम स्पेसिफिकली पर से, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे एंड इफ यू लुक केयरफुली, देखो ये जो हमारी आउटर, दिस इज़ द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ पेराइटल प्लूरा, और ये जो अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है दिस इज रेफर टू एज द विसरल प्लूरा. अब बच्चा ये जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, राइट, हम सबको पता है, हम सबको पता है दिस इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द थोरैसिक लाइनिंग. ये ऑलमोस्ट अडियर होती है टू द थोरैसिक चेंबर. सो द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन वेरी प्रॉक्सिमिटी, इज इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द थोरैसिक लाइनिंग, राइट? तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं थोरैसिक लाइनिंग के. वेराज अगर मैं बात करूँ इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो विसरल प्लूरा है, इट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द लंग सर्फेस, राइट? सो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज टू थोरैसिक लाइनिंग एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज टू लंग सर्फेस. बाद में एक ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर, ठीक है. तो ओके, द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है. अब देखो जो था statement 1, the anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. And statement number 2 says such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. What do you think? Which out of these statements are correct, or is it like both the statements are correct, or both of them are incorrect, or one is correct, one is incorrect? All of the question over to you. Now tell me, अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करूँ, स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है जो सेटअप है लंग्स का थोरैसिक कैविटी में कुछ इस तरीके से कि अगर कोई भी चेंज आएगा थोरैसिक कैविटी में इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी, दैट विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी और लंग कैविटी. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. मैंने आपको इमेज के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था. और स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है ऐसा अरेंजमेंट ज़रूरी भी है क्योंकि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर और चेंज द पल्मोनरी वॉल्यूम. सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है. हमने ऐसा लंग्स आर सो क्लोजली अडियर्ड टू द थोरैसिक चेंबर. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? It is because we cannot directly alter the pulmonary volume, and since we cannot do that, in order to breathe, in order to create that pressure gradient, हमें direct अगर हम नहीं कर सकते, indirectly हमें करना पड़ेगा, but काम तो हमें करवाना पड़ेगा because it's very very important to breathe, right? Otherwise how will you survive? ठीक है. So which is why ऐसी arrangement becomes even more essential because we cannot directly alter the pulmonary volume. So indirectly we are altering the pulmonary volume by altering the thoracic volume. I hope you get my drift, right? So both the statements are correct. And that makes option number 1 the correct answer. I hope that is clear to everybody. Now let's move on to another very important aspect of the chapter, okay, which is the mechanism of breathing, which is the entire mechanism of breathing, right? So we will restrict the part 1, I think, till mechanism of breathing, and then I think we will have a separate part 2, wherein we discuss exactly how do you go about it. Mechanism of breathing के बाद वाला जो भी part है, the thoracic volume, the respiratory volumes and capacities, and then the transport of gases and all that will be dealt with in a separate video. ठीक है. Yeah, because I think otherwise the class will get stretched for way too long and it'll neither help you nor will it help me, which is why we'll conduct the classes in 2 parts. Okay, now coming back to the topic. Now this is a very very important topic, so kindly make a note. Mechanism of breathing बहुत important topic है. जब बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हाउ एग्जैक्टली डू वी ब्रीथ, आई आल्सो हैव ब्यूटीफुल इमेजेस. अब देखो, जैसे कि अभी हम जो लास्ट लाइन पे जहाँ हमने पहला वाला थ्योरी कंप्लीट किया था, दैट वाज कि जो प्रेजेंस ऑफ लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चेंबर इज इन सच अ वे दैट एनी चेंज दैट वी ब्रिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर दैट विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी वॉल्यूम. ठीक है. जो लंग्स की प्रेजेंस है, लंग्स इस तरीके से प्रेजेंट है थोरैसिक चेंबर में कि अगर हम कोई भी बदलाव लाते हैं थोरैसिक चेंबर में तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है लंग की कैविटी में, राइट? आप क्लियरली देख सकते हो लंग्स आर सो क्लोजली अडियर्ड टू द रिब केज. अगर ये रिब्स हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो लंग्स कितनी क्लोजली अडियर्ड है टू द रिब. तो अगर मान लो आप इस रिब केज को इफ़ यू पुल इट आउटवर्ड्स, राइट, अगर मैं इसे बाहर की तरफ पुल करूँ, फिर पुल इट आउटवर्ड्स, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो लंग्स भी इसके साथ बाहर की तरफ एक्सपैंड करेंगे, एंड देन दे विल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट.
ठीक है। तो सच अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। दिस इज एग्जैक्टली वेरी लेफ्ट, राइट। अब अगर मैं बात करूँ इसको कराने में कौन कौन सी मसल्स है, अभी खुद से तो नहीं हो रहा है, इसमें यू नो सर्टेन मसल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज basically controlled by a set of muscles, which are the muscles involved are, we have the diaphragm, which is like the main muscle, and then we have the intercostal muscles, you know। forceful breathing में we do also include abdominal muscles, ठीक है। अब देखो diaphragm हो गया हमारे पास, intercostal muscles हो गए। we have two types of intercostal muscles, we have the external intercostal muscles and then we have the internal intercostal muscles, external intercostal muscles and then we have the internal intercostal muscles। I hope that is clear to everybody, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है external intercostal muscles and then we have the internal intercostal muscles। I hope that is very very clear to everybody, ठीक है। इतना आई होप सबको क्लियर है। अब देखो और इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वेल वर्स्ड विद व्हाट द डायफ्राम इज। आप क्लियरली देख भी सकते हो यहाँ पे। आई थिंक आई ट्राई टू शो यू द डायफ्राम ऑल्सो, इफ यू कैन सी, यू नो द वन दैट यू कैन सी इन पिंक हियर, ठीक है। आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा थोड़ा डोम शेप सा, ठीक है। इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट बट आई एम श्योर यू कैन सी इट, राइट। दैट इज द डायफ्राम, ठीक है, वी हैव लेबल्ड एज वेल डायफ्राम। अब बात करूँ मैं अगर इंटरकोस्टल मसल्स की, तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, देखो लेट्स ब्रेक द टर्म, राइट। द टर्म इटसेल्फ विल गिव यू अ हिंट। सबसे पहले इंटर मीन्स बिटवीन, inter means between, right। costa means ribs, right। inter means between and costa means ribs, ठीक है। inter means between, costa means ribs, ठीक है। सो इंटर का मतलब होता है बिटवीन और कोस्टा का मतलब होता है रिब्स। अब ये देखो ये रही एक रिब और ये रही दो रिब। अब इन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर रेफर टू एज इंटरकोस्टल मसल्स। जब इंटरकोस्टल मसल्स भी तीन तरीके के होते हैं। ऑल द एनसीईआरटी कैटेगोरिकली स्पीक्स अबाउट वन टाइप ऑफ इंटरकोस्टल मसल विच इज़ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बट हमारे पास एक्सटर्नल भी होती है। इंडायरेक्टली एनसीईआरटी इंटरनल की भी बात करती है, यू नो वेरी टॉक्स अबाउट फोर्सफुल ब्रीदिंग एंड ऑल। इनरमोस्ट इंटरकोस्टल की तो एनसीईआरटी बिल्कुल बात नहीं करती है, बट आई हैव ऑल्सो एडेड एन इमेज टू हेल्प यू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट बेटर। आप सबसे बाहर की तरफ देख सकते हो, देखो बाहर की तरफ एज यू कैन क्लियरली एंड प्रोमिनेंटली सी दिस इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सबसे बाहर की तरफ। फिर इनर टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वी हैव द इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है। थोड़ी अंदर की तरफ हमारे पास क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल, और उससे भी अंदर सबसे अंदर की तरफ हमारे पास क्या है, सबसे अंदर की तरफ है हमारे पास इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ऑन द आउटर साइड सबसे बाहर की तरफ, ठीक है, ऑन द आउटर मोस्ट साइड सबसे बाहर की तरफ बचा वी हैव द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनर टू दैट वी हैव द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और सबसे अंदर की तरफ होती है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। एट आर बेसिक ग्रेड और एट योर लेवल, एट आर लेवल्स, 12th ग्रेड के या नीट के लेवल पे हम इनर मोस्ट इंटरकोस्टल का कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। विल ओनली डील विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं एक्चुअली में देखो पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझाने से पहले आई जस्ट वांट लाइक फेमिलियराइज यू विद द बेसिक्स। लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस पूरे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के दौरान, द एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। पूरा बेसिक प्रिंसिपल क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एयर जो है वो मूव करेगी हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे। एयर जो है बच्चा वो किस पे मूव करेगी, एयर जो है वो मूव करेगी हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे। जस्ट लाइक एवरीथिंग इन जनरल सबको हाई से लो की तरफ मूव करना। व्हेन आई टॉक अबाउट थिंग राइट। तो एयर जो है, एयर बीइंग वन ऑफ देम, एयर जो है इट मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब पार्शियल प्रेशर क्या है, आई थिंक आई यूज इट कपल ऑफ टाइम्स बैक, थोड़ी पहले भी मैंने यूज़ किया है। तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर exerted by an individual gas in a mixture of gases is what is referred to as the partial pressure. Pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases is what is the partial pressure. अब देखो लेट्स से मैंने एक ये क्लोज चेंबर लिया, राइट, दिस इज द क्लोज चेंबर दैट आई हैव टेकन। अब इस क्लोज चेंबर में लेट्स से मैंने दो तरीके की गैसेस भर दी, बिकॉज हमें सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डील करना होगा, बट ये कोई भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। लेट्स से मैंने इसमें एक NO2 भी ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, गिव मी अ मोमेंट, थोड़ी सी इसकी थिकनेस इंक्रीज कर दूँ। लेट्स से ये जो मैं रेड कलर से ऐड कर रही हूँ, दीज आर नथिंग बट दीज आर नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन गैस, ठीक है, दिस इज N2 नाइट्रोजन गैस, ये N2 है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है। आप देखो तीन तरीके की गैसेज हैं। अब इस मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस क्या प्रेशर एक्सर्ट करिए ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ऑन द लिड ऑफ द कंटेनर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस the pressure which is exerted by an individual gas on the walls of the container या on the walls of the chamber, lid of the chamber में in a mixture of gases, that is referred to as partial pressure। उसको हम बच्चा क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं partial pressure। pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases, इस बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं partial pressure। I hope that is clear to everybody, ठीक है।
अब मैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक से ऑक्सीजन है, ठीक है, अब ये पूरा एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, अभी पूरा जो मिक्सचर है अलग अलग गैसेज अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वॉल। अब इस पूरे मिक्सचर में से ऑक्सीजन अकेले कितना प्रेशर एक्सर्ट करे, इस पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेज में से ऑक्सीजन अकेले कितना प्रेशर एक्सर्ट करे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट बिकम्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू ड्रॉ स्मॉल p एंड देन यू राइट द गैस, राइट, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना होगा तो मैं एक स्मॉल p और फिर साइड में लिख दूंगी और यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट करना होगा so small p and then the formula of nitrogen which is N2, right? That is how you do it, right? Partial pressure of nitrogen dioxide लिखना होगा, this is how I write it. Partial pressure of sulfur dioxide, that's how I write it. I hope you got the gist of it, right? अब देखो, ठीक है, तो आई होप पार्शियल प्रेशर समझ में आ गए होंगे। अब ब्रीदिंग जैसे कि मैंने बताया कैसे होगी, यू नो यू क्रिएट अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ब्रीदिंग बच्चा कैसे होती है, आप एक्चुअली में क्या करते हो, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हो, राइट, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हो, तभी तो एयर जो है वो हमेशा हाई से लो मूव करेगी, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक में हाई होगा और लंग में लो होगा, तो हाई से लो यानी एटमॉस्फेयर से लंग में। अगर लंग में हम किसी तरीके से हाई प्रेशर क्रिएट कर देते हो तो फिर हाई टू लो, फिर वो लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी। आई होप यू गेट द डिस्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद नॉर्मल इनहेलेशन। आई हैव आल्सो एडेड अ ब्यूटीफुल इमेज टू हेल्प यू विजुअलाइज इट अ लिटिल बिट, ठीक है। मैं बहुत ब्यूटीफुल एंड ट्रस्ट मी आई वर्कड ऑन ईच ऑफ दीज डायग्राम्स एज यू कैन क्लियरली सी। एक्चुअली मैं अगर दिखाऊँ तो देखो आप इसको ईजिली इरेज कर सकते हो, राइट। आई हैव रिटन इट डाउन ऑल, आई हैव रिटन ऑल ऑफ इट डाउन टू इंश्योर कि यू नो यू गेट इट, you understand it better. So I really hope you appreciate the efforts, and in case you do, please do hit that like button. Alright, तो जैसे कि मैं बोली थी नॉर्मल इनहेलेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो नॉर्मल इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में अगर आप मुझे कहना इनहेल कर रहे हो आप एयर को, जस्ट डू इट विद मी। You are inhaling the air, right? If when you're inhaling the air, right, आप एयर कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, एयर एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में जा रही है, राइट, विच मीन्स एयर इज मूविंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग। यानी जब इनहेल करते समय एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में मूव करे, यानी एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होगा और लंग्स में उसके रिलेटिवली लो प्रेशर होगा, राइट, तभी तो एयर मूव करेगी एटमॉस्फेयर से लंग्स में, बिकॉज एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। इतना तो सबको समझ में आया ना, एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, इतना सबको समझ में आया। अब एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो तो फिक्स्ड है, वी है 180 m विच इज़ इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ये तो फिक्स्ड है। यानी अब हम सिर्फ जो ऑल्टर कर सकते हैं वो है हमारे लंग के अंदर का प्रेशर, यानी हम लंग के अंदर जो प्रेशर है या तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा कर सकते हैं, या हमारे लंग के अंदर जो प्रेशर है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर सकते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, राइट। यू कैन नॉट रियली चेंज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल, बट व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल इज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। उसको भी डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, बट ऑल्टर तो कर रहे हैं ना विद द इवन, ठीक है, इनडायरेक्टली ऑल्टर कर रहे हैं बट कर तो रहे हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हमें एयर को मूव कराना है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द एयर, वी हैव टू क्रिएट अ प्रेशर ग्रेडियंट, और यू नो एटमॉस्फेयर के में ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के कंपेरेटिव जो लंग्स है उसके अंदर कम प्रेशर होना चाहिए। सो द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर शुड बी रिलेटिवली लो, ठीक है। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को आप डायरेक्टली लो तो नहीं ऑल्टर नहीं कर सकते। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम करना है, यानी जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है अगर उसको कम करना है, यानी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, बिकॉज हम सबको बॉयल्स लॉ पता है, बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मुझे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम करना है, बिकॉज तभी तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी, हाई टू लो मूव करेगी, तो अगर मुझे लंग का जो प्रेशर है वो कम करना है, इफ़ आई वांट टू डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आई हैव टू इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। अब यू नो आई हैव टू इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, तो अगर मैं इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करूँगी तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती, वो मुझे इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। हाउ? बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर। इफ आई वांट टू increase the intrapulmonary volume, how will I do it? By increasing the volume of the thoracic chamber. How will I increase the volume of the thoracic chamber? By using पहला है एक तो by using diaphragm and then by using external intercostal muscles, ठीक है। पहली चीज़ जिसकी मदद से मैं अपने वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber को ऑल्टर करूँगी वो है by using the diaphragm, and the second one being by using external intercostal muscles. I hope that is clear to everybody. तो सबसे पहले बच्चा मैं क्या करूँगी, अगर मैं बात करूँ डायफ्रैम की, तो सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी, डायफ्रैम को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करूँगी। ऑल राइट एवरीबॉडी, ओके। सो अब देखो, अब जब मैं बात करती हूँ डायफ्रैम की, तो डायफ्रैम में एक्जैक्टली क्या हो रहा है, हम देखो डायफ्रैम को क्या करेंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट द डायफ्रैम। तो डायफ्रैम आइडियली जैसे हम सबको पता है वो होता है डोम शेप, राइट, जैसे डोम शेप होता है, तो जब डायफ्रैम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट बिकम्स फ्लैट, डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, राइट, नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर मान लो लेट्स से दिस इज द डायफ्रैम, इट विल मूव डाउनवर्ड, और वो डोम शेप से क्या हो जाता है, डोम शेप से इट बिकम्स फ्लैट। सो डायफ्रैम जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इट बिकम्स फ्लैट फ्रॉम डोम शेप, ठीक है। अब जैसे ही इट बिकम्स, देखो मान लो ऐसे डोम शेप था, अब जब डोम शेप से वो फ्लैट हो जाएगा तो आप क्लियरली देख सकते हो इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया।
So the minute it becomes flat from dome shape, the volume of the thoracic chamber will increase in the anterior posterior axis, right? The volume of the thoracic chamber will increase anterior posteriorly, और जो भी change होगा in the volume of the thoracic chamber that will directly be reflected in the pulmonary volume, right? तो अगर volume of the thoracic chamber increase होगा anterior posteriorly, ठीक है, तो जो intrapulmonary volume होगी वो भी increase होगी, ठीक है। और अगर एक बार intrapulmonary volume increase हो गया, यानी volume within the lungs increase हो गया, तो intrapulmonary pressure already decreases, right? और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, और हमें कहीं ना कहीं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को ही डिक्रीज़ करना है ताकि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर पाए। दैट्स द इंटेंट, राइट। अगर मैं बात करूँ अब सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो अभी हमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को और कम करना पड़ेगा। तो नाउ वी यूज अनदर सेट ऑफ मसल्स विच इज़ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एंड आई जस्ट शो यू व्हाट आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। मैंने अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया कि सबसे बाहर वाली जो मसल्स हैं, राइट, दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इनकी वजह से अब मैं क्या करूँगी ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। जब मैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करूँगी तो ये बाहर की तरफ मूव करेंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जब ये बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, व्हेन दे विल मूव आउटवर्ड्स, तो द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर विल इंक्रीज डोर्सोवेंट्रली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो जब मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, सो देखो आप क्लियरली देख सकते हो, जब मैं इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, द रिब्स इन स्टर्नम दे विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, दे विल मूव आउटवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड, राइट। तो ये जब एक रिब्स और स्टर्नम जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, सो द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर विल इंक्रीज इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर विल इंक्रीज इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस या डोर्सोवेंट्रली, और जैसा भी वॉल्यूम में चेंज आएगा इन द थोरैसिक चेंबर दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, राइट। तो जैसे अगर वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेज डोर्सोवेंट्रली, सो फिर उससे क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एक बार इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है बच्चा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो हो जाएगा डिक्रीज, राइट। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज ही करना था, और जैसे ही ये हो जाएगा द एयर विल ऑटोमेटिकली कम इन, ठीक है। एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आ जाएगी, एंड दैट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। एक और डायग्राम है, देखो एक और डायग्राम इससे और बेटर समझ में आएगा, आई एम श्योर। देखो, तो एयर इनहेल जब आपको करना है तो एक्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज़ द डायफ्राम, राइट, दिस इज़ द डायफ्राम। व्हेन यू इनहेल, ठीक है, जब आपको इनहेल करना है तो डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड विल मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। डायफ्राम नॉर्मली ऐसा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, इट विल मूव डाउनवर्ड्स, और अगर ये नीचे की तरफ मूव कर गया तो आप क्लियरली देख सकते हो ये हमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल गया, राइट। सो द वॉल्यूम विल इंक्रीज इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ऊपर नीचे, लाइक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। बट यहीं पे अगर हम बात करें रिब्स और स्टर्नम की, और जब मेरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो रिब्स और स्टर्नम की रिब्स के बीचों में है, तो अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स और स्टर्नम है दे विल मूव आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, दे विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। तो यहाँ इस केस में जो मेरा वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करेगा इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, राइट, डोर्सोवेंट्रली। तो मेरा ओवरऑल जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया तो प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो यहाँ अंदर हो गया लो प्रेशर, बाहर मैंने क्रिएट कर दिया हाई प्रेशर, एयर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, एंड दैट्स एक्जैक्टली द एंटायर प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इट विच इज़ द एक्सिलेशन प्रोसेस। अब मैं एक्सिलेशन की एग्जैक्टली बात करूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, अब मैं एक्सिलेशन की बात करूँ तो एक्सिलेशन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देना, बिल्कुल जिस मसल को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसे रिलैक्स कर दो, दैट्स एक्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ एक्सिलेशन। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट्स दैट सिंपल, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँ नॉर्मल एक्सिलेशन की, तो एक्जैक्टली एक्सिलेशन के दौरान क्या हो रहा है एंड हाउ डू वी एक्जैक्टली गो अबाउट इट, ठीक है। एक्जैक्टली एक्सिलेशन में क्या हो रहा है एंड हाउ डू वी एक्जैक्टली गो अबाउट इट, लेट्स जस्ट सी दैट। अगर मैं एक्सिलेशन की बात करूँ तो देखो, जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो तो 760 mm होता है ना, 180 m होता है। 180 m को अगर मैं mm में लिखूँ तो 180 m इज इक्वल टू व्हाट, 180 m बच्चा कितना होता है, 180 m होता है हमारा 760 mm ऑफ Hg, 760 mm Hg, ठीक है। 180 m कितना होता है, 180 m बच्चा मेरा होता है 760 mm Hg, इतना होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो होता है 760 mm Hg, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं हाउ डू यू गो अबाउट इट, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो एग्जैक्टली, अब देखो क्या करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब एक्सिलेशन में क्या करना है, व्हेन वी एक्सेलिंग, जस्ट डू इट विद मी, व्हेन यू एक्सेलिंग द एयर इज मूविंग फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, राइट। तो हम एक्सेल कर रहे हैं, एयर जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, राइट। अब जब एयर मूव करेगी लंग्स से एटमॉस्फेयर में, यानी एयर लंग्स में जो है वो रिलेटिवली हाई प्रेशर होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है उसमें लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर फिक्स्ड होता है, यानी एटमॉस्फेयर के कंपेरेटिव हमें लंग्स का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब आपको कैसे करेंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट। तभी तो जो हमारी एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। ओनली व्हेन वी इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विल द एयर मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, राइट।
अब अगर मुझे प्रेशर एक्स्ट्रापल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज़ करना है तो हम सबको बॉयल्स लॉ पता है, प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मुझे प्रेशर को इंक्रीज़ करना है बच्चा, मुझे वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। नाउ हाउ विल आई डिक्रीज़ द एक्स्ट्रापल्मोनरी वॉल्यूम? कैन आई ऑल्टर इट डायरेक्टली? नो, मैं उसे इनडायरेक्टली ऑल्टर करूँगी बाय ऑल्टरिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर, राइट। तो अगर मुझे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज़ करना है तो मुझे इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और अगर मुझे इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। नाउ हाउ विल आई डू दैट? विद द हेल्प ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। एक हो गई हमारी डायफ्राम, एक हो गई हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो, अभी तक हमने क्या किया था, जब मैंने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था तब मैंने डायफ्राम को क्या किया था, तब मैंने डायफ्राम को डोम शेप से फ्लैट कर दिया था, राइट। डोम शेप से फ्लैट हो गया तो ये जो पूरा ये जो वॉल्यूम था ये इंक्रीज़ हो गया था इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को मैंने मूव करा था आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, राइट। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दो, जब मैंने जिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया वो सब उन्हें आपको रिलैक्स करना है। तो डायफ्राम क्या था, डायफ्राम को जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो डोम शेप से क्या हो गया, तो फ्लैट हो गया था। अब जब मैं डायफ्राम को रिलैक्स करूँगी तो वो क्या होता है, फ्लैट से क्या हो जाएगा, वापस डोम शेप हो जाएगा। जब डायफ्राम को मैं रिलैक्स करूँगी तो लेट्स से अगर ये मेरा डायफ्राम था कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, तो मैं इसे रिलैक्स करूँगी तो ये वापस डोम शेप हो जाएगा। और जब ये वापस डोम शेप हो जाएगा तो ये जो वॉल्यूम है वो तो घट गई ना, ये वाली जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो गई। और वॉल्यूम कौन सी डायरेक्शन में डिक्रीज़ हुई, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुई इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, राइट। सो द मिनट आई रिलैक्स द डायफ्राम क्या हो जाएगा, इट विल बिकम डोम शेप फ्रॉम फ्लैट, इट विल बिकम डोम शेप फ्रॉम फ्लैट। और जैसे ही वो डोम शेप हो जाएगा फ्लैट से, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर विल इंक्रीज इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। जो वॉल्यूम है थोरैसिक चेंबर की वो डिक्रीज़ हो जाएगी इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। और जैसे वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर डिक्रीज़ हो जाएगी इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, दैट इन टर्न विल डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर डिक्रीज़ हुई वैसे वॉल्यूम ऑफ इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे ही इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की अगर बच्चा मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था। तो मैंने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई हैव द डायग्राम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो जो मेरी रिब्स और स्टर्नम थे, दे वर मूविंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था तो ये बाहर की तरफ था, मैंने रिलैक्स करूँगी तो दिल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, वापस दे विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, राइट। एग्जैक्टली ऐसा ही तो होने वाला है, राइट। तो अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको, एंड आई वांट टू शो इट टू यू, तो अब क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिन्हें मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था, वो मूविंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड, अब मैं क्या करूँगी ना, रिलैक्स करूँगी। एंड व्हेन आई रिलैक्स द इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जब रिलैक्सेशन होगा तो रिब्स और स्टर्नम है, दे विल रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, राइट। रिब्स और स्टर्नम जो है दे विल मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। रिब्स और स्टर्नम जो है दे विल एक्चुअली मूव इनवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड, दे विल मूव इनवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड। और जब वो अंदर की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारी वॉल्यूम है थोरैसिक चेंबर की, दैट विल डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर डिक्रीज हो गई, दैट इन टर्न विल डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। तो जैसे ही रिब्स और स्टर्नम अंदर की डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमारी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर विल डिक्रीज, दैट इन टर्न विल डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। और जैसे ही इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुई, हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब मैंने दो तरीके से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज कर दिया ना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, और बाहर की तरफ लो पार्शियल प्रेशर है। सो द एयर विल मूव फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड एंड दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको समझ आ गया? नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। देखो, तो ये तो था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब मैं एक्चुअली अगर आपसे पूछूं, एंड लेट मी जस्ट टर्न द स्लाइड बैक, अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, व्हिच इज नथिंग बट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है, क्या ये एक्टिव प्रोसेसेस है या फिर ये पैसिव प्रोसेसेस है? व्हाट डू यू थिंक बच्चा? ये जो इनहेलेशन या एक्सहेलेशन है, व्हाट डू यू थिंक, आर दीज एक्टिव प्रोसेसेस और आर दीज पैसिव प्रोसेसेस? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है, दीज आर एक्चुअली में, अब लेट मी आंसर दैट फॉर यू। अगर मैं इनहेलेशन की बात करूँ, मैं या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, राइट। जैसे कि इंस्पिरेशन के दौरान हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, डोम शेप से फ्लैट हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे वर कॉन्ट्रैक्टिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। तो उसमें हम मसल्स को खींच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी लगेगी, राइट। बट एक्सहेलेशन में बताओ तो एक्सहेलेशन में हम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा रहे, जो कॉन्ट्रैक्टेड था उसे वापस उसके ओरिजिनल शेप में भेज रहे हैं, राइट। जैसे जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्टेड था, अब उसे वापस हमने डोम शेप कर दिया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, नाउ दे रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली, तो अब जिस प्रोसेस में मैंने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया वो ऑब्वियसली एक्टिव प्रोसेस बन जाएगा। सो जो नॉर्मल इनहेलेशन है वो तो होता है एक एक्टिव प्रोसेस, बट नॉर्मल एक्सहेलेशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल एक्सहेलेशन बच्चा क्या हो जाता है, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पैसिव प्रोसेस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आ गया, राइट। ये तो रिलेटिवली ईजी था, बहुत आसान था, इसमें एज सच कोई बहुत ट्रिकी बात नहीं है, राइट, जहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसे एज सच देखना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। अब देखो,
अब ये तो हो गया नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। एनसीईआरटी इससे ज़्यादा बात भी नहीं कर रही है, बट एनसीईआरटी जस्ट एक सिंगल लाइन मेंशन करती है, आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव इट। एनसीईआरटी जस्ट सेज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, देखो यहाँ पे ना एनसीईआरटी बात करती है अबाउट हाँ कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। तो ऑल द एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन देके ख़त्म कर दिया है कि फोर्सफुल रेस्पिरेशन के बारे में, फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है। तो ऑफकोर्स एक लाइन देके इससे ज़्यादा एनसीईआर इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। पर अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा एग्जैजरेट करूँ या फिर इसमें थोड़ा एग्जैजरेट वुड नॉट बी द राइट वर्ड, आई एम सॉरी, अगर मैं इसे थोड़ा सा इलाबोरेट करूँ तो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। तो जैसे कि एनसीईआरटी बोलते हैं वन कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग, हम अपनी जो ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा सकते हैं, एंड वी कैन डू फोर्सफुल ब्रीदिंग बाय यूजिंग एडिशनल सेट ऑफ मसल्स, जो कि एक तो हमारी एब्डोमिनल मसल्स और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। तो हमने ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ देखो अभी नॉर्मली जैसे मैं व्हाइल आई एम टेकिंग दिस लेक्चर एंड व्हेन यू आर अटेंडिंग द लेक्चर, लेट्स से यू आर हैविंग फूड और यू डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग, ठीक है। तो किसी भी दौरान आप क्या करो, आप नॉर्मली ब्रीथ तो हमेशा कर रहे हो, राइट। एंड व्हेन यू आर नॉर्मली ब्रीदिंग यू हार्डली इवन रियलाइज दैट यू आर ब्रीदिंग, व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर ब्रीदिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग यू आर ब्रीदिंग, तो आप उसको रियलाइज़ भी नहीं करते हो। बट ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ नॉर्मली नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हो कि नॉर्मली इनहेल नॉर्मली एक्सहेल। उसके अलावा अगर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करें तो वो भी तो कर सकते हैं, राइट, जो एक्जैक्टली हम योगा और मेडिटेशन में करते हैं, राइट। वी पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स, राइट। जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स, डीप इनहेलिंग डीप एक्सहेलिंग, ठीक है, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, ठीक है। तो वो सारी फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है, राइट। फोर्सफुल ब्रीदिंग भी तो कर सकते हो। वो फोर्सफुल ब्रीदिंग करने के लिए हमें लगती है कुछ एडिशनल सेट ऑफ मसल्स, जैसे कि हमारी एब्डोमिनल मसल्स और जैसे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब नीम ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स कौन सी एक्जैक्टली एब्डोमिनल मसल्स रखती हैं, यू डू नॉट रियली हैव टू नो, आई विल जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर। अब जैसे फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करूँ, लेट्स डू इट विद मी, राइट। आप फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हो, राइट। अब जो एक्सहेल कर रहे हो मतलब द एयर इज मूविंग फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, बाहर की तरफ एक्सहेल आउट कर रहे हो, एक्सहेलिंग आउट द एयर, राइट। तो एयर जो है वो लंग्स से मूव कर रही है, फ्रॉम द इट मूविंग फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। किससे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये हो रही है फोर्सफुल एक्सहेलेशन। क्या हो रही है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अगर मैं बात करूँ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की, तो अगर मान लो हमारी जो एयर है वो मूव कर रही है फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, तो एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में, यानी जो मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर है वो हाई होगा। बट लंग्स के अंदर प्रेशर हाई था तो नॉर्मल एक्सहेलेशन भी हो रही थी, यानी अगर मैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन करा रही हूँ, यानी अगर मैं और ज़्यादा एयर को एक्सहेल आउट कर रही हूँ, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो और ज़्यादा हाई होना चाहिए। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो और ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को मैं इंक्रीज़ कैसे कर सकती हूँ, ठीक है, बाय ऑल्टरिंग द वॉल्यूम्स, राइट। तो हम सबको पता है बॉयल्स लॉ, नाउ आई हैव डिस्कस्ड इट टाइम एंड अगेन। अब अगर मैं बात करूँ, मुझे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को कैसे डिक्रीज़ करूँगी, तो अगर मुझे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज़ करना है तो मुझे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा। मैंने मल्टीपल एरोज बना रखे हैं टू डिफ्रेंशिएट एंड डिमार्केट इट फ्रॉम नॉर्मल एक्सहेलेशन, राइट। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को मैं और कैसे डिक्रीज़ कर सकती हूँ, अगर मुझे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है तो वो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती, बट आई कैन डू इट बाय ऑल्टरिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। तो अगर मुझे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है तो मुझे जो थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम है उसको भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। आई हैव टू डिक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। मैं थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम को डिक्रीज़ कैसे करूँगी, पहले तो एब्डोमिनल मसल। अब जो एब्डोमिनल मसल है एब्डोमेन के नीचे है, यहाँ पे ये जो एब्डोमिनल रीजन, डायफ्राम जो है वो हमारी थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी से, राइट। सो डायफ्राम इज दैट स्ट्रक्चर जो सेपरेट करता है एक्चुअली में हमारी हमारी थोरैसिक कैविटी को, टीसी को, फ्रॉम एसी एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर मैं बात करूँ एब्डोमिनल कैविटी में हमारे एब्डोमिनल मसल्स है। अब जब ये एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुश द डायफ्राम इवन अपवर्ड, ठीक है। तो अब डायफ्राम अभी ऐसे है, ठीक है, व्हेन इट्स कॉन्ट्रैक्टेड तो डायफ्राम वैसे ही फ्लैट से डोम शेप्ड हो जाता है। बट अगर एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो डायफ्राम को और ऊपर पुश कर देते हैं, तो डायफ्राम और ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, ठीक है। अब डायफ्राम और ऊपर की तरफ पुश हो गया तो ये जो मेरी वॉल्यूम है ये और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लेट्स से मेरा डायफ्राम ऐसे था, ठीक है, और अगर मेरी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और माय एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे विल पुश द डायफ्राम इवन अपवर्ड, राइट। तो अब मेरा डायफ्राम ऐसे हो गया,
तो अब जब मेरा डायफ्राम ऐसे हो गया तो यानी मेरे पास अब सिर्फ इतनी वॉल्यूम बची रही। सो जैसे ही मेरी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी दे विल पुश द डायफ्राम इवन अपवर्ड, और जैसे ही वो डायफ्राम को और ज़्यादा ऊपर पुश करेंगी दैट विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर एंड दे विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस या फिर एंटीरियर पोस्टीरियरली। और जैसे ही थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, ठीक है, उसी के साथ साथ जो वॉल्यूम इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही मेरी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो मैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लगा दूंगी, ठीक है। थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम डिक्रीज हुई वैसे ही मेरी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और जैसे ही मेरी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुई, राइट, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज हुई मेरा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जो ही मुझे करना था, राइट, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट सिर्फ इतना प्रेशर इंक्रीज नहीं करना, मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करना है बिकॉज दिस इज फोर्सफुल एक्सिलेशन, ठीक है। तो अब मैं किसका मदद लूँगी? अब मैं लूँगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की मदद। मैं किसकी मदद लूँगी? आई टेक द हेल्प ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब क्या होगा बच्चा, अब जो मेरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेंबर, राइट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये रही। तो अभी तक नॉर्मल ब्रीदिंग में वी वर जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ दीज एक्सटर्नल, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू गाइस, गिव मी अ मोमेंट, ओके। डू आई हैव अ सूटेबल कलर? गिव मी अ मोमेंट। देखो आई वांट टू शो इट टू यू एंड इफ़ यू सी, आप एक्चुअली में देख सकते हो, राइट। अभी तक तो मैं सिर्फ इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की मदद ले रही हूँ, पर अब मैं क्या करूँगी, आई विल ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ दीज मसल्स, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। आई विल ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ दीज मसल्स विच आर नथिंग बट दीज आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो मैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की भी मदद लूँगी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की ही मदद लूँगी जिसकी मदद से मैं एक्चुअली में पल्मोनरी वॉल्यूम को और ज़्यादा डिक्रीज़ कर पाऊँगी, राइट। तो गिव मी अ मोमेंट, ओके, देयर वी गो, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, अब मैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगी तो देखो अब ये ना थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जैसे कि अभी आपने देखा वो थोड़ा बाहर की तरफ है, तो अगर मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ ना तो दे मूव आउटवर्ड, राइट। अगर मैं उसके अंदर की तरफ है मेरे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ ना तो दे मूव इनवर्ड, वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो वो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो उतना अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो जब मैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ दे मूव द रिब्स इन स्टर्नम, दे मूव इवन इनवर्ड, दे मूव मोर इनवर्ड, वो और अंदर हो जाते हैं एंड दैट डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अगर रिब्स और स्टर्नम और अंदर की तरफ मूव करेंगे दे मूव इवन इनवर्ड, और ज़्यादा इनवर्ड मूव करेंगे, दैट विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। और एक बार वॉल्यूम डिक्रीज कर गया थोरैसिक चेंबर का इन दी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, तो उससे क्या होगा, द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज, राइट। द इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज, और एक बार इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो जैसे ही हमारा इंटरनल या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एक बार इंक्रीज हो जाएगा तो एयर जो है हमारी मूव करेगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर एंड इट विल मूव फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सीलरेशन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो पार्ट 1 में आई थिंक वी हैव अ फेयर शेयर डिस्कशन। अब जिसका लास्ट पार्ट बचा है दैट इज नथिंग बट दैट इज वी ओनली लेफ्ट विद व्हाट, वी ओनली लेफ्ट विद 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। अब लास्ट पार्ट जो बचा है उसमें वे ओनली लेफ्ट विद द एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसको करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज से। वील कंटिन्यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इतना सबको समझ आ रहा है, राइट। वील हैव सेपरेट पार्ट 2 एज वेल, ठीक है। पार्ट 2 में करेंगे। अब देखो मैं एक्चुअली पार्ट 1 को अब लेट्स फर्स्ट रैप अप पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 की बात में करते हैं। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर अब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी इज गोइंग टू मेक so much sense. Every single line of NCERT is going to make absolutely perfect sense. तो जैसे कि एनसीईआरटी बोलती है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग में एक्चुअली 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, एक है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो इंस्पिरेशन वो है ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्चुअली ड्रॉन इन और इट्स टेकन इन, और एक्सपिरेशन वो है बाय विच द एल्वियोलर रिच एयर, जो एल्वियोलर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है दैट इज रिलीज आउट। अब ये जो मूवमेंट है एयर का इनटू द लंग्स एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये किसकी मदद से हो रहा है? इट्स एक्चुअली कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। रिमेंबर वी आर नॉट क्रिएटिंग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हम एक प्रेशर ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट होता है डिफरेंस, हम एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। अब इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जो कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, दैट इज एक्चुअली लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इंस्पिरेशन, इनहेलेशन कब होगा? इनहेलेशन तब होगा जब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो लेस है दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तभी तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा है तभी तो एयर जो है बाहर से अंदर मूव करेगी, राइट। तो इंस्पिरेशन तब होता है जब जो प्रेशर है विद इन द लंग्स दैट इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैंने लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रीड दीज लाइन्स, दे थिंक हाँ लंग में आप नेगेटिव प्रेशर मतलब क्या माइनस में प्रेशर है? नहीं, माइनस की बात नहीं करें। अब एक बहुत बेसिक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये है 2 नंबर लाइन में वी हैव 1 2 3 एंड वी गो सो ऑन, ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब यहाँ पे लेट्स से मैं एक नंबर ले लेती हूँ, लेट्स से आई टेक 28। अब मैं आपसे अगर बोलूँ 28 और 2 में व्हाट इज़ मोर पॉजिटिव, तो आप ये बोलोगे 28 इज़ मोर पॉजिटिव, ठीक है। जैसे 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 हम वी मूव टूवर्ड्स द राइट, वैसे वैसे पॉजिटिव नेचर इंक्रीज़ करता जाता है राइट। अगर यहाँ पे होता है हमारा 0, यहाँ होता है -1 -2, तो -2 और ज़्यादा नेगेटिव होता है। अब जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव कर जाते हैं, जो हमारा पॉजिटिव नेचर है इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस लाइन के कहने का मतलब है कि जो लंग्स में प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के विद रिस्पेक्ट टू कम होता है, ठीक है। मान लो लेट्स से अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 760 mmHg जो कि फिक्स्ड है, तो लेट्स से लंग में हमारा होगा, एक बहुत रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे नहीं होता, जैसे हम गिविंग लाइक अ रैंडम एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो हमारा जो लंग का प्रेशर है, अगर मान लो वो 760 mmHg है, तो लेट्स से हमारे लंग के अंदर का प्रेशर हो गया 757 या 758 mmHg, ठीक है। तो लंग्स जो एटमॉस्फेयर है उसके कंपेरेटिव तो रिलेटिवली लेस प्रेशर है ना, लेस प्रेशर है, तो इसीलिए हमने बोला कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर मतलब कम प्रेशर है, ठीक है। अब सिमिलरली अब यहाँ पे अगर ये बात, अब सिमिलरली यहाँ पे ये बात करते हैं अबाउट एक्सपिरेशन, द टॉकिंग अबाउट एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में बोलते हैं एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपिरेशन यानी एक्सहेलेशन तब होती है जब जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, प्रेशर विद इन द लंग दैट्स हायर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हाई से लो यानी लंग से एटमॉस्फेयर की डायरेक्शन में एयर मूव करती है। डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स व्हिच इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, दे एक्चुअली help us, like as you can clearly see power off होने वाला है device, which is the only reason you know why I'll do a part 2 of it. Just give me a moment, we're almost done, right? अब देखो ये जो हम जो चेंज कर रहे हैं in the volume, right, ये हमारे किस किस की मदद से हो रहा है? दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये जो मैं चेंज ला रही हूँ यू नो हमारे वॉल्यूम में या प्रेशर में, ये किसकी मदद से हो रहा है? 2 सेट ऑफ मसल्स की मदद से। एक है हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक है हमारी डायफ्राम, ठीक है। दे एक्चुअली हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, की एक्चुअली मदद करते हैं इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में। इंस्पिरेशन इनिशिएट होता है या स्टार्ट होता है व्हेन वी कॉन्ट्रैक्ट द डायफ्राम। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, राइट। इंस्पिरेशन कब होता है? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब इट बिकम्स फ्लैट, डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, राइट। दैट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और जैसे ही जो वॉल्यूम है थोरैसिक चेंबर की वो इंक्रीज होती है इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बच्चे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो क्या करेंगी? दे विल लिफ्ट द रिब्स इन द स्टर्नम अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। वो क्या करेंगी? दे विल लिफ्ट द रिब्स इन स्टर्नम अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और जब वो रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करेंगे दैट विल कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर, ठीक है। और जब रिब्स इन स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो द वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम जो इंक्रीज करेगी वो है डोर्सोवेंट्रली। क्या करेगी? वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रली इंक्रीज करेगी। ये जो ओवरऑल इंक्रीज आया इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ये जो ओवरऑल इंक्रीज आता है ना बच्चा थोरैसिक वॉल्यूम में, ये जो ओवरऑल इंक्रीज आया थोरैसिक वॉल्यूम में, ठीक है, ये सेम रिफ्लेक्ट होगा इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। सो दिस इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम विल इन टर्न कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। और जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम विल डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, दैट इज बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, और जैसे प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दैट इज व्हाट फोर्सेस द एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। यू नो दैट इज व्हाट फोर्सेस द एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। यही है पूरा प्रोसेस इंस्पिरेशन का। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ एक्सपिरेशन की, आई नाउ टॉक अबाउट एक्सपिरेशन, जिसके लिए मोमेंट, ठीक है। एक्सपिरेशन में क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स विल रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशंस। अब क्या होगा? अब जिन जिन मसल्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उन्हें रिलैक्स कर दो। जब मैंने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया वो फ्लैट हो गया, फ्लैट से वापस डोम शेप हो जाएगा, राइट। फ्लैट से वापस डोम शेप हो जाएगा। सो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब जब मैंने डायफ्राम को रिलैक्स किया वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड दे विल रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम। वो दोनों क्या करेंगे? दे विल रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयरबाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, और उससे क्या डिक्रीज हो जाएगी? हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम। और जैसे पल्मोनरी वॉल्यूम एक डिक्रीज हो गई, दैट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। उससे क्या होगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दैट इज व्हाट विल कॉज एन एक्सपल्शन ऑफ एयर। उससे क्या होगी? एयर बाहर रिलीज हो जाएगी। दैट इज व्हाट विल कॉज एन एक्सपल्शन ऑफ एयर, जिसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी बोलती है वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन
ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो होता है वो 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट, एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच इज़ ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट एंड या। अब ये वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व था इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स, राइट, आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहे थे, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर रहे थे, ऑल ऑफ दैट कैन बी एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड यूजिंग अ डिवाइस जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। और ये स्पायरोमीटर एक्चुअली में हमें मदद करता है इन द क्लिनिकल असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स टू जज, राइट, इन क्लिनिकली जजिंग द पल्मोनरी फंक्शन, राइट, क्लिनिकली वी कैन जज, वी कैन कंक्लूड, वी कैन मेक अ डिसीजन, राइट, क्लिनिकल जजमेंट्स में हमें मदद करता है, राइट। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्लियरली सी मेरी फ़ोन बैटरी इज़ अबाउट, द फोन इज़ अबाउट टू डाई, राइट, द बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। वन सेकेंड। Alright, ठीक है, तो we will keep the classes till here. As you know, my battery is about to die, and we'll complete the part 2 in the next video, wherein I will take up the respiratory volumes and capacities and transport of gases and the remaining parts, regulation, everything will be covered in depth, right. वो जो मेरा sigmoid graph of pain होता है, all of that along with the disorders will be dealt with in the next video. So stay tuned, and in case you thoroughly enjoyed this and you could see the efforts that have been put, please kindly do appreciate the efforts. Do leave a comments in the comments down below. I'd be more than delighted to hear from your end, and if you thoroughly enjoyed it, do spread the word, do share it among your friends, and if you really like the video, stay tuned and follow for more. Until we meet again, this is the educator Dia signing off. Sayonara and happy learning.